Assalamualaikum everybody, this is Faisal Kapadia. आज हम आई ड्रीम्स के लैब में बैठे हुए हैं एंड आई हैव अ वेरी स्पेशल पर्सनालिटी विद मी हियर टुडे. Malia Rahman, she's a senior fashion journalist. She's a senior journalist in entertainment as well. She writes for Dawn. She writes for the business of fashion. She's also somebody that people in the industry have come to trust as far as her writing is concerned. She's also somebody who has her own space now called Gloss, etc. तो मलिया ये पूरी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? It was just fate. मैंने तो नहीं सोचा था कि मैं लिखूंगी. मैंने तो business पढ़ा है all my life, but there was this gap in my life when I turned to writing for solace. Okay. Because there was a lot of disease in my house. Okay. And we were struggling with cancer, and a relative had cancer. I turned to writing for solace. घर में कोई बीमार होता तो सब घर में बंद होके रह जाते हैं. This was 18 years ago. I started sending out emails to different people with samples of my work. And Najam Sethi responded. Okay. And he gave me my first job in Daily Times, Karachi, which was all about politics and health. My very first fashion story was an interview with Humayun, whose Funk Asia was huge at the time. Park Towers में दुकान होती थी. It had just launched? नहीं, 2 साल हो गए थे शायद. अच्छा. तो खैर फिर उसके बाद I fell in love with that genre. For some time, I was the editor of Hi. It was a magazine that Amir Adnan had. It was an in-house magazine. And then I met Muniba Kamal. Okay. Muniba Kamal was the editor of the news at the time, InStep, the news. Muniba के साथ मैंने 3 साल काम किया. The news में पैसे नहीं मिलते अक्सर. The news में तो मैंने free में काम किया और मैंने इतना सीखा कि I landed my dream job, which was Dawn, and then there was no turning back. The Dawn you started out with writing fashion stories only. तब तक मैं full fashion entertainment पे चली गई थी. नजम सेठी ने मेरे लिए वो opening की और मैं writing में गई और मैं उन circles में move करने लगी कि I would be searching for 3 stories a week आपको submit करनी होती थी on politics, on lifestyle, on culture. God steered me towards fashion, and then God steered me towards Muniba, and then मैं बड़ी खुशी I was new. I just wanted to be there at Fashion Week, sitting next to her, listening to her कि देखो ऐसे analyze करो, ये देखो वो देखो. बीच में मैंने और भी लोगों से सीखा. Senior journalists that I worked with, I learned from all of them, and then I came across my editor Faisal Qureshi at Dawn, and we clicked. और Dawn started off, वो तो मेरी dream job थी. तब से अब तक I think 10 साल हो गए, 11 साल हो गए, मुझे तो याद भी नहीं, बहुत साल हो गए कि मैं Dawn के लिए ही लिख रही हूँ. And how did Gloss etc. come to? Okay, Faisal, you know this already. But the audience needs to know. Gloss etc. ऐसे आया कि मैं बहुत loyal हूँ तो और and of course Dawn was my dream. तो मैं लिख रही थी और मुझे ये पता चल गया था कि Instagram एक चीज़ है तो I was also Instagramming like mad. So people were getting acquainted not just with my byline in writing but also with my captions, with what I put up on Instagram. And you write your own captions all the time. Yes, I write my own captions जो मुझे ज़ाहिर है Instagram एक revenue stream होता है बहुत major हम सब के लिए. तो जो मुझे PR captions भेजती हैं वो भी मैं अक्सर ठीक कर रही होती हूँ. I know that. जैसे एक वर्ड है स्टनिंग, मुझे बहुत बुरा लगता है. स्टनिंग जो है वो जब फैशन वीक्स होते थे अब तो नहीं होते. स्टनिंग जो है वो हर ब्लॉग और हर इंस्टाग्राम पेज हर कपड़ों को स्टनिंग लिख देता था. आई हेट दैट वर्ड. तो स्टनिंग तो आपको बहुत कम याद है. मैं बहुत थकी हुई होंगी तो मैं लगा दूंगी. एक और भी तो है 3. Yes, please, like कुछ तो आगे सोचें. खैर तो फिर then COVID happened. And when COVID happened, I realized कि लोग तो सिर्फ देख रहे हैं. मैं क्या कर रही हूँ, मैं सिर्फ लिख रही हूँ, लोग तो देख रहे हैं. और ऑल्सो द फैक्ट कि जब हम डॉन के लिए लिखते हैं तो हम एक एडिटोरियल प्रोसेस, एक वेटिंग होती है. एडिटर्स आपका चेक करते हैं काम, देखते हैं, कोई स्टोरीज अप्रूव होती हैं, कोई नहीं होती. कोविड से पहले इतनी कहानियाँ होती थी, फैशन वीक्स इतने होते थे, इवेंट्स इतने होते थे कि एक स्टोरी रिजेक्ट हो भी गई तो 3 एक्सेप्ट हो जाती थी. अब एक फ्रस्ट्रेशन होने लगी कि क्या है, क्या करें. डर्ट भी तो आ गया ना कंटेंट. हाँ. सो आई गॉट परमिशन फ्रॉम माई एडिटर्स and I launched a web page with help from my good friend Faisal Kapadia. But you were very professional about this. I know a lot of journalists जो उन्होंने एकदम से शुरू कर दिया, but आपने proper permission ली अपने editor से करने के लिए. Because you were loyal and you were like, this is the right way. I still am. Absolutely. Right? I'm still working for the paper because I have that transparency with them. तो
वो मैंने किया, फिर मैंने रियलाइज़ किया कि अच्छा तब तक फैशन जो था अब डाई डाउन कर रहा था। एक वक्त था जब हम साल के 4 फैशन वीक्स अटेंड करते थे, बहुत थक जाते थे, बहुत नाशुक्रे थे, बुराइयां करते थे We उसकी। didn't know what we had. हाँ, और फिर वो ख़त्म हो गया। लकीली फॉर मी, मैं हमेशा से सेलिब्रिटी और फैशन पे लिखती थी, तो लेकिन ये होता था कि 60% फैशन, 40% सेलिब्रिटी। नाउ इट बिकेम 80% सेलिब्रिटी, 20% फैशन, और जैसे जैसे फैशन बोरिंग होता गया, ये सेलिब्रिटी क्वेश्चन बढ़ता गया। तो क्योंकि मैं सेलिब्रिटीज़ के बारे में लिखती थी, तो जब फैशन ख़त्म हुआ तो हमारे न्यूज़पेपर ने फिर सेलिब्रिटी इंटरव्यूज़ पे ज़्यादा फोकस करना शुरू किया। क्योंकि कोविड था, वी वर नो लॉन्गर मीटिंग इन ऑफिसेज और कैफ़ेज़, वी वर मीटिंग इन माई होम। एंड व्हेन वी मेट एट माई होम एंड आई हैड अ सेपरेट रूम, जो नहीं यूज़ होता था वो उस वक्त इस काम के लिए हो गया यूज़। मैंने कहा ये तो यूट्यूब होना चाहिए। मैं बड़े लेट आई इस तरफ, यूट्यूब एक्साइटेड, it's and again that's loss etc, it comes under the loss etc umbrella। एक नई चीज़ थी जो मुश्किल से कैप्चर करनी थी, जिसमें अलग मेहनत करनी थी, जिसमें अलग अलग किस्म की टेक्नोलॉजी थी। इट wasn't just about words, बात से बात निकालनी थी, कोई ब्लंडर नहीं करना था क्योंकि इट was on video, वीडियो एडिटिंग फ़र्क होती है। तो then I fell in love with that also। अच्छा मलिया, how do you select your celebrities for the interview process? कैसे select करते हैं? Okay, आप बताती हैं, डॉन बताता है, कभी Gloss कभी etc. ये कभी वो, क्योंकि हम लोग और बहुत से तो अब डॉन के इंटरव्यूज नहीं होते, बहुत से तो मेरे अपने इंटरव्यूज होते हैं। आइकॉन में भी तो होते हैं ना, इसलिए। आइकॉन में तो होते हैं, लेकिन बहुत से मेरे इंटरव्यूज सिर्फ वीडियो के होते हैं। बिकॉज मुझे लगा, मेरा दिल करा, मुझे लगा, एंड बिकॉज दैट सेलिब्रिटी ट्रस्टेड मी, बिकॉज दे न्यू they'd come to me and there'd be no problem, there'd be no crazy controversy usually। So ये होता है कि उनका काम आपको एक्साइट करे, उनका कोई प्रोजेक्ट शायद ऑन एयर हो जो इतना इंटरेस्टिंग हो कि आपका दिल चाह रहा हो उनके साथ बैठ के बात करने का, या आपके उनसे ये कंफर्ट लेवल हो कि आपको पता हो कि आप उनसे बात करेंगे तो वो आपको सही सही बताएंगे अपनी जर्नी के बारे में। देयर आर डिफरेंट पॉइंट्स जो कभी किसी वजह से, कभी उनका काम उस वक्त बहुत अच्छा हो रहा था, कभी उनकी जर्नी ही इतनी अमेजिंग होती है कि यू वांट टू मीट देम, यू आर एक्साइटेड। सो इट वेरीज। अच्छा, तो इनसे कोऑर्डिनेशन में मुश्किल होती है? A lot of the celebrities that I am interviewing are shooting dramas, और ड्रामा शेड्यूल्स ऐसे होते हैं कि रात के 9 बजे ख़त्म होते हैं, 10 बजे, हाँ 10 बजे। 10 to 10। रमज़ान में कभी कभी ऐसे भी इंटरव्यूज़ हुए हैं जो रात के 1 बजे हुए हैं, क्योंकि उनका शूट ख़त्म हुआ है, फिर वो चाहते हैं कि वो सहरी तक जागे, तो कहते हैं कैन वी कम एट 1 एंड ओके कम ऑन ओवर, हम जागेंगे सहरी तक। सो कभी कभी कोऑर्डिनेशन में मसला होता है फॉर श्योर। अल्लाह का शुक्र, आई फील दैट a lot of them really respect me, they try to come on time, and a lot of them really do come on time. A lot of time there are managers like Faisal Kapadia who bullies them and tells them you better come on time. नहीं, बुली तो नहीं करते, बट आई मतलब आई थिंक इट्स bullies the wrong word, आप उन्हें कन्विंस करते हैं कि नहीं इस पे टाइम पे आना चाहिए। तो बिकॉज दूसरे आदमी का टाइम भी तो इम्पोर्टेंट होता है, नहीं, एंड योर मैं टाइम इज बताऊं, आल्सो इम्पोर्टेंट। फैसल जब आप इंटरव्यू आपने प्लान किया होता है ना, यू हैव दिस एनर्जी, यू हैव दिस क्वेश्चंस एंड थिंकिंग ऑफ देम, और मैं कभी कोई क्वेश्चंस का लिस्ट देखती नहीं हूँ, मैं बात से बात निकालती हूँ। मुझे मजा आता है हैविंग अ वेरी ऑर्गेनिक कॉन्वर्सेशन। तो जैसे जैसे घंटा 2 घंटा 3 घंटा लेट होगा, माई एनर्जी विल सैप एंड इट वोंट बी एज एक्साइटिंग और एज इंटरेस्टिंग एज आई वुड वांट इट टू बी, क्योंकि मैं थक जाऊंगी, क्योंकि मैं तो 3 घंटे से इंतजार कर रही होंगी। तो बहुत फर्क पड़ता है। PR managers help big time, a lot of time, because वो एक in between होते हैं। आप कुछ सेलिब्रिटी को नहीं कह रहे होते टाइम पे आ जाना, देखो उठ जाओ, वेकअप कॉल, उठो आ जाओ वो आपका काम कर लेते हैं। So अच्छा, मुझे बताओ कि यू नो, do you have this particular way of doing interviews? Even when you do written interviews, you say कि मैं जो है ना फोन पे बात करूंगी या मैं in person मिलूंगी। Why do you do that? तो Other फैसल people क्या just send across questions. नहीं फैसल, लेकिन वो फिर डिटेल नहीं होता ना, वो तो क्यों नहीं होता है। ये तो एक ऑर्गेनिक कॉन्वर्सेशन है जिसमें मेरे अपने जो परसेप्शन है वो बहुत इन्वॉल्व है, एंड बात से बात निकलती है। ये बहुत ज़रूरी है बात से बात निकले। अगर मैं किसी सेलिब्रिटी को जानती ही नहीं हूँ तो मैं चाहूँगी मैं उनसे इन पर्सन मिलूँ। Familiarity चाहिए। हाँ, I need that familiarity. I need to know what they're thinking. I need to see them. It's very important in video and writing to do that. अगर मैं किसी को जानती हूँ, बहुत सालों से जानती हूँ, और मुझे पता उनका शेड्यूल क्रेजी है, तो फिर हम फ़ोन पे कर लेंगे, but that is not preferable because
एक इंटरव्यू शायद 3 साल में मैं एक बार एक किसी को इंटरव्यू करूँगी, राइट? तो it needs to be good, it needs to be in depth. तो ये भी रूल है कि इस साल में 2 बार नहीं हो सकता है? नहीं हो सकता है, लेकिन यूजुअली कोऑर्डिनेशन ऐसी ही होती है ना कि 3 साल में एक बार. एंड ऑल्सो मेरा दिल करता है कि कोई सेलिब्रिटी हो, कोई डिज़ाइनर हो, कुछ भी हो, जाहिर है जो भी उनके बारे में पढ़ रहा है या जो भी वीडियो देख रहा है उसके बारे में जानना चाहते हैं. वो ये सिर्फ नहीं जानना चाहते कि जी आप का फेवरेट सीन कौन सा है. दे वांट टू नो कि ओ आप उसका क्या फील कर रहे थे. सो पीपल वांट टू नो दैट पर्सन एंड आई वॉन्ट माई ऑडियंस टू नो दैट पर्सन. एंड हमेशा मैं वो सवाल पूछती हूँ, मैं इंटरव्यू से पहले सोचती हूँ कि कौन सी बातें हैं जो मैं इनके बारे में जानना चाहती हूँ. यूजली वो बड़ी कोई इंक्विजिटिव और थोड़ी सी इंट्रूसिव बातें होती है. मैं इंटरव्यू से पहले उनसे इजाज़त ले लेती हूँ कि मैं ये सवाल पूछ सकती हूँ. Yeah, you're very particular about it. हाँ, ये मैं पूछ लेती हूँ बिकॉज आई हैव पर्सनल क्वेश्चन, स्पेशली यू हैव टू मेक श्योर दैट दे आर कंफर्टेबल विद दैट. तो मैं उनसे पूछ लेती हूँ. लेकिन वही चीज़ें लोग जानना चाहते हैं, जेनेरिक सवाल कि जी फेवरेट सीन, फेवरेट डायरेक्टर, वो भी अच्छे होते हैं, लेकिन हाउ दे वर फीलिंग, व्हाट दे वर थिंकिंग, डिड दे एवर फील इनसिक्योर. देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स दैट आर मोर ह्यूमन. वो फैसल में एक बात बताना भूल गई. व्हेन आई स्टार्टेड ऑफ, my daughters were very young. Okay. And I have 2 daughters, and it used to be crazy scheduling things about. And I was with Muniba काफ़ी strict editor थी, तो मुझे टाइम पे आना है, टाइम पे डिलीवर करना है. मैं पूरी रात, अभी भी जब भी फैशन इवेंट होता है तो मैं पूरी रात लिखती हूँ रिव्यू. आई वांट माई रिव्यू टू बी द फर्स्ट वन आउट इन द मॉर्निंग. इट्स माई ओन प्रॉमिस टू माई सेल्फ. कोई एडिटर अब ये नहीं कहता मुझे, मैं खुद चाहती हूँ कि ये करूँ. और ग्लॉस पे भी आई वांट कि सबसे पहले मेरा. That's a journalist. हाँ, वो मुझे शौक है, ये क्रेज है. और वीडियो में भी मेरा दिल चाहता है मेरा सबसे पहले आए. कोशिश यही होती है, होता है कभी नहीं होता, बट कोशिश होती है. सो माई डॉटर्स वर वेरी यंग. सो द डे फैशन वीक वॉज हैपनिंग और लेटर मूवी प्रीमियर्स भी मैं जाने लगी. जब वो हुए तो मुझे बहुत ऑर्गेनाइज करना पड़ता था पूरा दिन, बिकॉज आई हैड अ 2-year-old एट होम, जो जिसे अक्सर नेबुलाइज करना होता था, जिसकी बहुत सी चीज़ें होती थी. आई हैड फैमिली, आई हैड माई हस्बैंड, एवरीबडी हेल्पिंग, बट यू नो दे वर माई गर्ल्स. तो जब मैं जाती थी ना उन 2 घंटों के लिए, आई यूज्ड टू बी लाइक कि मैंने इन 2 घंटों के लिए इतना पूरे दिन वर्क किया है, इतना एफर्ट किया है कि these 2 hours have to be the best. And so I would make sure, and really I think इसीलिए मैं इतनी जल्दी मेरी राइटिंग अच्छी होती गई, मेरा काम अच्छा होता गया. अल्लाह का शुक्र, मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ा. मैं बस काम करती रही, क्योंकि मैं सोचती थी कि मैं कितना गिव अप करके इधर आई हूँ कि मैंने उससे नेबुलाइज करना है, और मैं यहाँ हूँ एंड आई एम कॉलिंग होम एंड टेलिंग देम कि इस टाइम नेबुलाइज करें. तो वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मेरी इतनी हाई होती थी कि आई वाज लाइक these 2 hours are gonna count. So the posts would come very quickly, the Instagram later, that would come very quickly, the stories would come on time, because I wanted to win this. I had done, मैंने इतना sacrifice किया था in order to win this. I think that was a major factor that led to me doing so much so quickly. फिर मैं मुनीबा के लिए सारी stories लिखने लगी. एक point ऐसा आ गया था, फिर डॉन इतने आराम से just came to me. So This is the kind of line I've heard from many women in this field. अच्छा. And because obviously as a female यहाँ पे whether you're married or whether you have children or not, opportunity cost इतनी ज़्यादा होती है घर से बाहर निकलने की, that they try to maximize whatever they're doing. And it works like magic. Yeah. Because बाकी लोग तो थोड़े से relax होते हैं. Easy होते हैं ना, they have all the time in the world. You just have those 2 hours. So you make them count like anything. Now I'm going to ask you stuff that you ask people. Fashion or entertainment? Right now, entertainment. Why? Because fashion is not what it used to be. Fashion isn't trying hard to be creative. ठीक है. अच्छा, वैसे जब भी मैं फैशन के बारे में कोई भी कवरेज करती हूँ, कोई इंटरव्यू करती हूँ किसी फैशन मॉडल के साथ, I feel like I'm home. मुझे पता है तुम्हारा दिल तो फैशन में ही. That's what I started with, right? नहीं, अब मेरा दिल बहुत हद तक एंटरटेनमेंट में भी है, क्योंकि फैशन बहुत हो गया है टॉक्सिक. But don't you feel कि एंटरटेनमेंट में भी अदाकार और अदाकाराएं जो है, जब आप उनके बारे में कोई चीज़ लिखते हैं या स्टोरी ब्रेक करते हैं, वीडियो में तो चले हम परमिशन ले लेते हैं, मगर कोई स्टोरी आती है और आप ब्रेक करते हैं तो उनकी तरफ से बहुत फ्लैशबैक आता है, या वो आपको कहते हैं कि नहीं ये नहीं करो, ये हटा दो, ये करो, ये भी तो अच्छा, बहुत तो होता है. फैसल सेम लाइक डिजाइनर्स होता था. हाँ, अभी भी होता है, डिज़ाइनर अभी भी करेंगे, यू गिव देम द चांस, वो करेंगे. हाँ, फैसल होता है, लेकिन यू नीड टू हैव योर ओन बाउंड्रीज. फॉर इंस्टेंस, इफ इट्स समथिंग पर्सनल, somebody having a baby, somebody having an affair, maybe you need to be careful with that. और आप खुद जज हैं इसके कि
कौन सी ऐसी बात है जो आप नहीं करेंगे बिकॉज इट्स डिसरिस्पेक्टफुल और इट्स क्रॉसिंग अ लाइन. तो पर्सन पे आप रिपोर्ट करना अवॉइड करते हैं, फिर क्या करते हैं? Of course, I report, but for instance, if there's just this vague rumor of an actress having an affair with someone, रूमर तो खैर है नहीं. तो कंफर्म कब होता है? वो तो जब खुद बोलेगी तो कंफर्म होगा ना, जब Yeah. वो तस्वीर लगाएगी खुद तब कंफर्म होगा ना. कोई उसकी फ्रेंड की फ्रेंड मुझे बताएगी, वो तो कंफर्म नहीं है. Do you think anybody can do this? Because you see, I see journalists running portals. ठीक है, आप हैं, राहील है, आमना इंसानी है, proper journalists, जो journalist background से हैं, जिन्होंने they've been through the ranks, they've worked their way up, and now they're running huge portals. And then I see people who have no journalistic background, doing YouTube channels and doing reporting and doing stuff like that. Do you think anybody can do this? And don't you think पाकिस्तान में ये बहुत ज़्यादा हो गया है कि आप मूवी देखने जाएं तो आप मूवी क्रिटिक बन जाते हैं? पूरी दुनिया में हो गया है. हाँ. पूरी दुनिया में हो गया है. और YouTube ऑडियंस को पता है कि अभी वो एक लेमन्स व्यू ले रहे हैं और अभी वो एक जर्नलिस्ट का रिव्यू ले रहे हैं. YouTube ऑडियंस जज कर सकती है. आई थिंक अगर लोग मेहनत करें तो जिसका ना भी पुराना जर्नलिस्टिक बैकग्राउंड हो वो भी ऑन द ग्राउंड सीख लेते हैं और वो ओवर टाइम बहुत अच्छा करने लगते हैं. शायद उनमें ऐसी कोई ability हो जो मुझ में ना हो, that they can connect with the masses more easily with the way they talk, the way they connect. तो कर सकते हैं. टाइम लगता है. You learn on the ground. हमने भी तो लर्न किया है. हमें भी तो YouTube नहीं आता था. मैं तो अभी भी सीख रही हूँ. आमना को तो बहुत टाइम हो गया. She is a pro. Raheel is a pro at Instagram. He knows precisely what works. But I feel I'm still learning YouTube. I'm enjoying the learning process actually. तो which is why I'm still at it. तो वो सीखते हैं, टाइम के साथ सीखते हैं. हाँ, हमारा जर्नलिस्टिक बैकग्राउंड हमें हेल्प करता है कि सवाल इस तरह पूछना है, ये बात इस तरह प्रोजेक्ट करनी है. वही सवाल जो बहुत बदतमीजी का हो सकता है वैसे ऐसे घोल के पूछ लेते हैं कि सेलिब्रिटी को भी नहीं पता चलता और बात भी हो जाती है. सो वो हेल्प करता है. बट और उनके अंदर भी एबिलिटी आ सकती है. और पूरी दुनिया में अब हो रहा है कि ऐसे रिव्यूज़ आते हैं जो बिल्कुल रैंडम लेमन्स लैंग्वेज में होते हैं, मज़ेदार किस्म के. दे आर नॉट टू बी टेकन सीरियसली. वो आप ऐसे ही देखते हैं. और फिर एक होता है जर्नलिस्ट का रिव्यू जो लोग देखते हैं कि ओ दिस अ सीरियस रिव्यू. ये देख के फिर मूवी देखने जाएंगे अगर जाना चाहेंगे. चले, मूवीज की बात हो रही है तो आप बताएं आपको प्रीमियर्स कैसे लगते हैं? Is there something you hate about premieres? Faisal, I don't like premieres. That's why I'm asking. I don't think anybody likes premieres. What is the one thing you hate about premieres? Oh, there are so many things. मूवी हमेशा लेट शुरू होती है. ठीक है, ये तो है क्योंकि सेलिब्रिटीज़ ने आना है. अच्छा, आप सेलिब्रिटीज़ से मिलने आए, आप उनसे नहीं मिल सकते, बहुत रश होगा, आपको तस्वीर भी मुश्किल से मिलेगी. इससे बेहतर है जो PR कर रहा है उससे कहने कि मुझे 2-3 तस्वीरें भेज दें. That's better. फिर मूवी अक्सर बहुत बुरी होती है. आप उस वाले ऑडिटोरियम में होते हैं जिसमें सेलिब्रिटीज सारे बैठे हुए होते हैं. आप बीच में कैसे निकले? वैसे ही 2 घंटे लेट शुरू हुई है, 2 बजे खत्म होनी है, आपको निकलना है. So how many movies have you seen which was so bad that you wanted to get up in the middle and leave? 95%. Oh wow, that's a lot. You've been there. Of course. आप भी देख रहे होते हैं, मैं भी देख रही होती हूँ. तो आप उठ के नहीं जा सकते. फिर आपको तैयार होके जाना होता है. सिनेमा में 2.5-3 घंटे बैठने के लिए यू वांट टू वेयर योर मोस्ट कंफर्टेबल सलवार कमीज, वेयर योर ग्लासेस एंड नॉट वेयर एनी मेकअप एंड जस्ट गो एंड हैव फन. सो अ प्रीमियर इज इट्स मोर ऑफ अ नेटवर्किंग इवेंट. यू सिटिंग देयर वाचिंग इट. मसला ये हमारी फिल्में इतने जल्दी उतर जाती हैं सिनेमा से कि बेहतर है कि जर्नलिस्ट एटलीस्ट प्रीमियर पे देख लें, क्योंकि शायद 1 हफ्ते बाद उसको ऐसा कोई अजीब सा टाइम दे दें विच इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज. सो एटलीस्ट यू सी इट एट द प्रीमियर. प्रीमियर मुश्किल होता है, सबको मुश्किल लगता है. अच्छा, आप बताएं आपका टॉप मोस्ट फेवरेट इंटरव्यू कौन सा है जो आपने कंडक्ट किया? दिस इज अ टफ वन. Fashion में somebody I really enjoy interviewing is Sheru HSY. He has so many stories. He has so And he's a much to storyteller. say. He's a storyteller. He knows. He has a gift. And हाँ, उसे बतानी आती हैं बातें. I've always loved interviewing Noman Ijaz. He's very funny. He never beats around the bush. लेकिन बहुत सालों पहले मैंने लास्ट इंटरव्यू किया था. I've loved interviewing Farhan Saeed recently. He's very honest. He's huge, but he's very down to earth. Mahira Khan always gives beautiful interviews. She gives very heartfelt answers. She also knows how to tell a story, how to put in the punchline where it's needed. Kubra Khan is amazing. अभी मैंने उससे इंटरव्यू किया. She's very honest. She's the girl next door.
So, you connect with her instantly. Maha Tahirani is a model that I loved interviewing recently because uske answers rehearsed nahi the. Model turned actress. Model and actress. She hasn't turned. She's modeling and acting. So her answers weren't rehearsed. So I love that. So it goes on and on. हर महीने एक इंटरव्यू ऐसा था जो मुझे पता था दिस वाज अमेजिंग दिस वाज फन हमेशा होता है. So, as an entertainment journalist, since you cover movies and dramas and all of these things, last Eid pe there were like 6-7 movies. इस Eid पे सिर्फ 8 movie है. Why do you think this is एक happening? दो और आ रही हैं. अच्छा. अब एकदम से they are crawling out of the woodworks. Mainstream तो एक ही movie है अभी तक जो हमको पता है. शायद एक पंजाबी movie भी आ रही है. I don't know. एक चार UK पश्तो फिल्में आ रही हैं. अच्छा. नहीं मतलब movies that are mainstream पिछली बार बहुत ज्यादा थी इस बार बहुत कम है. True. Why do you think this has happened? मूवीज फ्लॉप हो रही हैं. कितने पैसे लगते हैं मूवीज में, वो फ्लॉप हो रही हैं इसलिए नहीं आ रही इतनी. दे आर लुकिंग फॉर इन्वेस्टर्स, नहीं मिल रहे. बड़ा दिल चाहिए मूवी में इन्वेस्ट करने के लिए इस वक्त बिकॉज यूजुअली लोग टीवी देख लेंगे जो फ्री का है, टीवी ड्रामे में लोग देख लेंगे बट टिकट लोग बहुत मुश्किल You से. think it's because of the ticket price? 1000 रुपए की टिकट प्राइस हो गई. लेकिन टाइम की भी बात है. हमने बुरी फिल्में देखी हैं ओवर टाइम दैट वी लॉस्ट फेथ इन सिनेमा. Don't you feel कि हमारी मूवीज बहुत ज़्यादा या तो ग्रैंड बनाने की कोशिश करते हैं या कुछ सिंपल स्टोरीज पे मूवी नहीं बनाते जैसे हिंदी मीडियम थी. सिंपल स्टोरीज पे बहुत कम बनाते हैं और जब भी बनाते हैं तो एडिट में हमेशा लंबा खींच देते हैं. जो मूवी अब देखें इंडियन मूवी भी एक ज़माने में 3 घंटे की होती थी, 1.5 आवर होती है. हमारी फिल्म 2.5 आवर्स पे ही बैठी हुई और मोर देन 2 एटलीस्ट, राइट. सो जनरली ऑल ओवर द वर्ल्ड ये पता चल गया है कि ऑडियंस का अटेंशन स्पैन हो गया है कम, फिल्म छोटी करनी है. और अगर डायरेक्टर से एडिट नहीं हो रही तो वो एक एडिटर को साथ बिठाए जो बहुत रूथलेसली कट कर दे वो पार्ट्स जो लंबे खींच रहे हैं. हाँ, डायरेक्टर्स कांट एडिट ऑल द टाइम. मुझे पता है इवन एज समबडी व्हेन आई एम एडिटिंग माय ओन कंटेंट मुझे लगता है कि बहुत स्पेशल है देन आई आस्क समबडी एल्स लुक इनटू इट एंड टू स्निप इट डाउन. सो वो तो मूवी है, उसमें तो इतने पैसे लगे हुए हैं, इतने एक्टर्स हैं, इतनी लाइंस डायलॉग्स हैं, तो दे नीड टू एडिट इट, दे नीड टू मेक इट शार्पर. कभी कभी बड़ी अच्छी फिल्में होती हैं कि आप कहते हैं ये बस आधा घंटा कम होती, ये गाना बेकार का गाना हटा देते, ये 2 सीन हटा देते तो कितनी अच्छी होती. अच्छा, हमारी फिल्मों में गाने भी आप नोट करें कि कोई भी मतलब जैसे इंडियन सिनेमा को आप देखें दे रन ऑन देयर सॉन्ग्स. ठीक है, हमारी मूवियों में गाने कोई स्पेशल आते नहीं है, हालांकि हमारे पास अमेजिंग सिंगर्स हैं. हाँ, यूजुअली नहीं आते. And we have amazing singers compared to India. Yeah. I mean, singers that India was taking into movies and delivering hit after hit after hit. राहत हो गए, आतिफ हो गए, ठीक है. तो why do you think कि मतलब हमारे गाने मूवीज में इतने अच्छे नहीं होते? पता नहीं. एक शादी का गाना जरूर होता हाँ. है ताकि फिर बाद में मतलब वो एक कैटेगरीज है. हाँ. एक लव सॉन्ग होगा, एक सैड सॉन्ग होगा, एक शादी का गाना. आई थिंक ज्यादा कोलैबोरेशन की जरूरत है म्यूजिशियंस के साथ. हमारे ड्रामों की ओएसटीज अच्छी हो रही हैं. ये देखें ना. तो इसका मतलब है कि फिल्मों के भी गाने एक हिट सॉन्ग्स की लिस्ट हो सकती है. एक फिल्म के लिए बहुत कम होता है कि आप देखें गानों की ओएसटीज भी इसलिए अच्छी हो रही है ना बिकॉज़ दे आर कोलैबोरेटिंग विद द टॉप मोस्ट आर्टिस्ट. हाँ, दे आर इन्वेस्टिंग इनटू टाइम एफर्ट मनी. राहत, आसिफ अजहर, यस, आतिफ असलम. तो वो जब आप इन्वेस्ट करते हैं वो टाइम एफर्ट और पैसे then you get something beautiful. और फैसल, I know you like me are stuck watching all films, all TV, all fashion shows. So you have to agree जब टीवी ड्रामा देखते हैं तो गाना कितना इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करता है, कैसे वो नैरेटिव मूव करता है. यस, तो इसी तरह फिल्म में है लेकिन फिल्म का कोई गाना ऐसा यादगार नहीं होता. और मूवीज टीवी ड्रामे के बाद आई हैव एक्चुअली heard people playing TV OSTs in their cars while they're driving They have by. views in the millions, billions. Yes, so that can happen in film also, but yeah, it isn't happening. Yeah. तो फिल्म में बहुत चीज़ें सुधारने की ज़रूरत है. लोग टिकट खरीद रहे हैं तो you need to give them something that Delivery होनी चाहिए. हाँ, something that has been streamlined a lot more. बहुत ज़्यादा और उसको नीट करना, उसको खूबसूरत करना, उसको प्रोफेशनल करना ज़रूरी है. Okay, so Malia, recently we've seen that by some posts by actors and what we keep hearing about and talking about in the industry, and we know a lot of stuff that goes on behind the scenes as well. There's a massive distrust between acting fraternity and journalists. Why do you think that has happened? क्या हुआ है? एक तो इंस्टाग्राम आ गया,
एक ज़माने में हम ही वो एक मिडिल पीपल होते थे जो ऑडियंस को उनके फेवरेट एक्टर्स से कनेक्ट करता था। हमारा वो लिखा हुआ इंटरव्यू होता था या वीडियो पे इंटरव्यू होता था जो लोग देखते थे एंड दे वुड कनेक्ट। नाउ एक्टर्स हैव देयर ओन सोशल मीडिया। कहते हैं हमें तो ज़रूरत ही नहीं है, क्यों हम आए। ऑल्सो यू हैव टू सी दैट ऑन टीवी व्हेन एन एक्टर कम्स फॉर एन इंटरव्यू तो वो पैसे लेते हैं उसके। कहते हैं हम फ्री में इंटरव्यू भी दें और फिर उससे कंट्रोवर्सी निकले और हमारा नाम खराब हो, व्हाई शुड वी डू नहीं, दैट। अब तो लोगों ने बोलना शुरू कर दिया कि मैं चार्ज करूंगा या मैं चार्ज करूंगी इंटरव्यू। ज़ाहिर है उनका वक्त है, दे वांट टू कैश इन ऑन दिस स्टार पावर एंड सही बात है। लॉट ऑफ टाइम्स इन इंटरव्यूज वो कोई ऐसी बात कह देते हैं जो कंट्रोवर्शियल होती है एंड दे हैव टू बेयर अ लॉट ऑफ ट्रोलिंग। तो फिर एटलीस्ट वो कहते हैं कि हम पैसे तो लें इस काम के लिए, क्यों हम ये तकलीफ भी लें एंड फ्री में करें। तो उसकी वजह से देयर हैज़ बिन दिस फीलिंग दैट इन द आर्टिस्ट कम्युनिटी कि हमें मीडिया की, जर्नलिस्ट की इतनी कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरा वाकई बहुत बार हम में से बहुत से लोग ऐसे इंटरव्यूज़ कर लेते हैं जिसमें आर्टिस्ट को लगता है कि दे हैव बीन मिसकोटेड और इट्स बीन टेकन आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, तो उन्हें एक लैक ऑफ ट्रस्ट हो गया है। या बात वो कुछ और कह रहे होते हैं, कुछ और हेडलाइन बना देते हैं। हाँ, जैसे कि आई नो कि आई कैन पुट माई फेथ इन सो एंड सो एक्टर एंड इंटरव्यू हिम और हर एंड ये एक बहुत अच्छी कोलैबोरेशन होगी। इस तरह उन्हें भी पता है कि कौन से लोग हैं जिनके साथ बात करने से एक उनकी ही प्रोफाइल बिल्डअप होती है या उनको ही जब कोई गूगल करेगा तो बहुत अच्छा एक सॉलिड कंटेंट मिलेगा। सो दे नीड टू नो हू टू ट्रस्ट। श्योर मे बी दे डोंट नीड मीडिया एज मच एज दे यूज टू बिकॉज अब उनका अपना सोशल मीडिया है, लेकिन जब वो खुद लोगों को बताते हैं कि वो देखो हमारा काम, और जब कोई और जिसने बहुत साल लगाया इंडस्ट्री में वो कहते हैं कि वाह आज तो बहुत अच्छा काम था, उसकी बात और है, वो तो यू कांट डिनाई। नहीं, बिल्कुल बात हो रही है और मुझे ये बात समझ में नहीं आती बिकॉज हमारे एक्टर्स का सोशल मीडिया फॉलोइंग अभी भी, फॉर एग्जांपल अगर हम नेक्स्ट डोर वापस कंसिडर कर लें, उनसे तो बहुत कम है, ठीक है। मगर मैक्सिमम इंटरव्यूज और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस वो लोग कर रहे होते हैं। दीपिका कर रही होती करते हैं, शाहरुख खान कर रहे हाँ होते हैं। करते हैं। ठीक सो है। यू कांट अंडरस्कोर के हाँ। मीडिया का कोई काम हाँ, काम मतलब है। आप अगर ये आर्ग्यूमेंट बेसलाइन बनाते तो शाहरुख खान को क्या जरूरत है लेकिन मैं मीडिया ये बिल्कुल कहती हूँ, बल्कि कुछ एक्टर्स मुझे कहते हैं द यंग वंस ना, the great thing about having 18 years in the business is that now you're in the older lot, so you can guide and you can, you know, say, you can give them advice and they trust you more because they've been seeing you for so long. तो the young ones tell me कि हम वो हो जाएंगे, कंट्रोवर्सी में आ जाएंगे एंड हम बहुत ट्रोल होते हैं, हमें नहीं होना। तो आई ऑलवेज से कि पिक एंड चूज, तो चूज कर लें, सबसे बात ना करें, हर इंटरव्यू में ना जाएं, एक किसी से बात कर लें जिसे ट्रस्ट करते हैं। जरूरी तो क्योंकि इंटेग्रिटी तो उसी से आती है ना जब कोई और आपके काम के बारे में बात वही करे, ना, जो आप कह रही हैं। वही तो। और हर कोई थोड़ी कंट्रोवर्सी के पीछे पड़ा हुआ है। देयर आर पीपल हु विल वांट टू टेक अ गुड सॉलिड इंटरव्यू एंड टू प्रोजेक्ट देम इन द वे हु आर एक्चुअली, यू नो, समटाइम्स कोई ऐसा ड्रामा होता है या कोई ऐसी फिल्म होती है विच इज़ सो एक्स्ट्रॉर्डनरी कि बिकॉज दिस इज माई इंडस्ट्री, I feel that it's a win for me, Yeah. and I want to celebrate it with the artists because I have access to the artists. I want to sit with them and celebrate it with them. अच्छा, तो जब ड्रामा की बात करते हैं, and I know you watch a lot of dramas and you have to watch a lot of dramas. So do you. Is there any topic that you think that our drama should touch upon? Faisal, I'd love to see more mystery thrillers, but good mystery thrillers, not the ones जिसमें end में एकदम से बस कोई भी मर्डरर हो जाता है और आप कहते हैं ये क्या हुआ, ऐसे बहुत होता है। बट यू नो, बहुत बार हमारी ड्रामों की कहानियाँ बहुत अच्छी हैं, उन्हें ड्रैग्स और फ्लैशबैक्स ख़त्म कर देते हैं। मतलब 25 से 50 एपिसोड ना करें। हाँ, ना करें ना करें। तो एक्चुअली बहुत बार कहानियाँ अच्छी होती हैं और उनकी जो ट्रीटमेंट होती है, जो वो ड्रैग होती हैं और जो फ्लैशबैक्स आते हैं, वो इतने पेनफुल होते हैं कि उससे ड्रामा ख़राब होता है। आप अगर कभी किसी प्रोड्यूसर या डायरेक्टर से बात करें तो वो कहते हैं कि ड्रामे की फिजिबिलिटी ज़्यादा अच्छी बनती है जब आप लंबा ड्रामा हो, जब 40 एपिसोड। ऑडियंस को अच्छा लगता है, आपको लगता है? नहीं, फिजिबिलिटी एज इन देयर एट टाइम, रेवेन्यू, दैट काइंड ऑफ स्टफ। हाँ, वो इसलिए लंबा तो खींचते हैं। फिर या वो अच्छा ड्रामा बनाए, वो पैसे कमाए। हाँ, फिर वो क्रिटिकल अक्लेम ड्रामा नहीं, क्रिटिकली अक्लेम नहीं होगा, कमर्शियल अक्लेम हो सकती है। हाँ। तो और क्रिटिकली अक्लेम्ड जो ड्रामास होते हैं, डू यू थिंक दैट दे गेट रेटिंग्स और नॉट? नो दे डोंट। मुझे अभी एक एक्टर कह रहे थे, मैं उनके ड्रामे की बहुत तारीफ कर रही थी, तो कहने लगे आपको जो अच्छा लगता है वो हिट नहीं होता। तो वाकई मुझे तो वही अच्छा लगेगा जो बहुत जिसमें खींचेगा intellectual नहीं, capacity जिसमें होती है। 13 एपिसोड खाली होंगे, जिसमें
कुछ भी एक जगह भी एडिट आउट नहीं होगा, जाहिर है अच्छा तो वही लगता है। नहीं, वो यूजली हिट्स नहीं होते, वो होते हैं जो यादगार होते हैं, जो आप शायद बाद में फिर से देखें, लेकिन वो कमर्शियल हिट्स नहीं होते। कभी कभी ऐसे भी ड्रामे होते हैं, लेकिन दैट मैनेज टू बैलेंस कमर्शियल एंड क्रिटिकल। काशिफ निसार के बहुत सारे ऐसे ड्रामे होते हैं जो कमर्शियल और क्रिटिकल दोनों हो जाते हैं। और भी बहुत अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स हैं हमारे यहाँ, इतने अच्छे डायरेक्टर्स हैं, their work is so good. And in the limited resources they have. Yes, and because I know how they work, I've known all of them now for so many years, a lot of them. तो मैं जब उनका ड्रामा ड्रैग होता है, स्ट्रेच होता है, तो मैं उनके लिए फील कर रही होती हूँ कि कितना अच्छा काम किया था, और देखो ये फीजिबिलिटी की खातिर खिंच गया, बट काशिफ निसार शायद ये होने नहीं देते अपने ड्रामा के साथ, तो इसलिए उनका वो एक आइकॉनिक ड्रामा होता है। रेटिंग आए ना आए, वो ड्रामा आइकॉनिक होता है। अच्छा, अब आप ये बताएं कि would you ever consider screenwriting or drama script writing? I don't think I can write the kind of Why not? stories that No, I mean you can write stories that you want to write. the stories that I want to write will not be a hit probably. How do you know that? एक बार मैं एक डायरेक्टर के साथ थी फ्लाइट पे, और उन्होंने कहा तुम कोई कहानी मुझे सुनाओ जो तुमने लिखी है, और तो मैंने उन्हें सुनाई। तो आपने लिखी है? मैं लिखती रहती हूँ, राइट। So that's a call for all the directors and producers out there. अब कम लिखती हूँ, लेकिन पहले तो बहुत लिखती थी। तो अब जाहिर है सोशल मीडिया ने ना हमारे सारे अटेंशन स्पैन ख़त्म कर दिया। एंड बट आई टोल्ड हिम वन स्टोरी एंड ही इज़ लाइक, ये इतनी अच्छी स्टोरी है, ये क्या पाकिस्तान में कौन देखेगा, ये कोई कहानी होती है। उन्होंने मुझे पूरा लेक्चर दिया। तो मैं जो लिखती हूँ शायद वो इट्स नॉट फॉर। तो डू यू थिंक डिटैचमेंट है हमारी जर्नलिस्टिक थॉट में और राइटिंग में और मासेस में, कि इसी वजह से इंटेलेक्चुअल ड्रामे नहीं हमें समझ नहीं इंटेलेक्चुअल होते हैं ड्रामे, लेकिन क्योंकि जब मैं लिखती हूँ तो मैं उस तरह का लिखती हूँ जैसा मैं पढ़ती हूँ, और क्योंकि जो मैं पढ़ती हूँ वो सारी वेस्टर्न फिक्शन होती है, तो वो एक अलग बिल्कुल दैट्स अ डिफरेंट साइड ऑफ मी। लेकिन हाँ, जब मैं ड्रामे के बारे में लिखूंगी या फैशन या फिल्म, तो मैं बिल्कुल यहाँ की आवाम की तरह सोच रही हूँगी और उनके पर्सपेक्टिव से लिखूंगी, तो ऐसा कोई डिस्कनेक्ट नहीं है, समझ आता है। लेकिन अगर मैं स्क्रीन प्ले लिखूंगी ना तो वो चलेगा नहीं। और वैसे ही मैं इतना लिख रही हूँ, YouTube एडिट सीखी है मैंने अभी मैं इतना काम कर रही हूँ, तो उसमें टाइम भी बहुत लगता है। हाँ, मेरे पास वो मेंटल कैपेसिटी अब फिलहाल तो नहीं है। आई एम वेरी हैप्पी विद ऑल द डिफरेंट थिंग्स दैट आई हैव बीन डेल्विंग इनटू। चलें, थैंक यू सो मच मलिया फॉर गिविंग अस योर टाइम एंड इट वाज अ रियली फन एक्सपीरियंस।